تے اپنے بندیاں نال پالو کانا تمام کیوں تے اپنے بندیاں نال پالو کانا تمام گل کرے گا جو سی بات صلح سلام دی گل کرے گا جو سی بات صلح سلام دی پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل کو آسی بھی پر چاہیدہ ہے جو مڑیے نا اس گل کو آسی بھی. آئیے کلام خدا کو سننے کے لیے خدا خادم کے لیے میری خشبوں کے سامنے دعا کریں. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح قدوس آپ کا شکر تعریف اور تمجید کرتے ہیں. مہربان خدا، کامل خدا، غیور خدا، پاک خدا کہ تو نے فضل بخشا کہ ہم تیری حضوری میں آئے تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے. سبت کے دن خداوند تیرے مقدس ہیکل میں آئے تاکہ تجھ سے روبرو خداوند پاک خدا، تاکہ تو ہم سے کلام کرے، تو ہم سے بولے خداوند پاک خدا. تیرے خادم کو تیرے سپرد کر دیتے ہیں خداوند پاک خدا. تو اپنے خادم کا ذمہ لے خداوند پاک خدا، اور جو کلام ہو ہماری زندگیوں میں نقش ہو جائے خدا پاک خدا. ہماری زندگی میں ہتھوڑے کی مانند کام کرے. آج کا کلام ہماری زندگیوں کو بدل ڈالے. آج کا کلام ہماری بند زمینوں کو کھول ڈالے خداوند پاک خدا. ہمارے دل کو خداوند کھولے تاکہ تیرے کلام کے وسیلہ سے ہم برکت پر برکت پائیں. شنا خدا پاک روح اور بڑی مدد کرنا یسوع المسیح کے نام سے آمین. خدا یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور القادر نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. اور خدا کی تعریف ہو. کرسمس کے ایونٹس بھی چل رہا ہے اور مسیحیوں کے لیے تو ہر روز ہی کرسمس ہے جب وہ یسوع کی نجات کو اپنی زندگی کے اندر لیتے ہیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. السلام سے لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اور اس کی 9ویں اور 10ویں آیت میں یوں لکھا ہے. لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 9ویں اور 10ویں آیت. یسوع نے اس سے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے. خدا یسوع مسیح جو ابن آدم ہے اور ہم نے اس کے بارے میں کرسمس کے ایام میں یہ بات سیکھ رہے ہیں کہ کس قدر خدا نے انسانی جامہ پہنا، کس طرح سے خدا انسانوں کے بیچ میں آ گیا انسان بن کر، اور کس طرح سے وہ جو میرا خالق ہے وہ دنیا میں آیا اور اس کو ابن آدم کہا گیا ہے. اور پالوس رسول تو اس کو آدم ثانی کہتا ہے. پہلا آدم جو باغ عدن میں ہے جس سے گناہ سے آزاد ہوا، لیکن جو آدم ثانی ہے جو یسوع المسیح ہے یہ ابن آدم کہلایا. یہ اس لیے تاکہ انسانوں میں آ کر انسانی روپ لے کر انسانی جامہ پہن کر انسان بن کر وہ انسانوں کی تلاش کرے، انسانوں کو ڈھونڈے. اور یہاں پر جب وہ متی زکئی کے گھر میں ہے جو محصول لینے والوں کا سردار ہے، اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ گنہگاروں کے ہاں جاتا ہے، گنہگاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، گنہگاروں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے. اس پر اس سے بڑی تنقید کی جاتی تھی. فقیہ، فریسی، شرع کے معلم اس بات پر اس سے بڑی تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ کیسا ہے. اگر یہ نبی ہے اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کسبیوں کے ساتھ بلچنوں کے پاس چل جاتا ہے. اگر یہ نبی ہے، اگر یہ خدا کا بھیجا ہوا ہے، اگر خدا کا روح اس کے اندر کام کرتا ہے تو پھر سے معلوم نہیں ہے کہ یہ گنہگاروں کے ساتھ کھاتا اور پیتا ہے. اسے کبھی شرابی کہا جاتا، کبھی کھاؤ کہا جاتا، کبھی کچھ کہا جاتا، بے شمار ناموں سے. لیکن یسوع کا جو مشن تھا، یسوع کا ایک ہی مشن تھا کہ وہ جو کھو گئے ہیں، وہ جو گناہ میں پڑے ہوئے ہیں، وہ آدم جس نے اپنے آپ کو پتوں میں چھپایا ہے، وہ آدم جو گناہ میں گر گیا ہے، گراوٹ کا شکار ہو گیا ہے،
उस आदम को वो ढूंढे। तो कलाम खुदा में लूका की इंजील के 15वें बाब में 3 तमासील ऐसी हैं जिसमें हमें ये बात वाज़ेह नजर आती है कि वो ढूंढने और निजात देने के लिए आया। क्रिसमस दरअसल जो हम मना रहे हैं, ये गुनहगार इंसान को ढूंढा और उसे निजात दी है। वो जो खो गया है उसकी तलाश की है और उसकी तलाश के लिए उसने अर्श को छोड़ा और फर्श पर आ गया। उसकी तलाश के लिए उसने इंसानी जामा पहना, इंसानी लिबादा उड़ा, इंसान बन गया ताकि उस जैसा बनकर, और पौलुस कहता है कि वो गुनहगारों की सफ में खड़ा हुआ। उसने अर्श को छोड़कर फर्श पर आ गया और उसने अपने आप को पस कर दिया, अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को उसने यहां तक पस किया कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। और उसने अगरचे वो खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, उसने अपने उस आला नाम की भी इस बात का भी ख्याल नहीं किया। बल्कि कलाम कहता है जब उसने अपने आप को पस किया, जब उसने फरमाबरदारी दिखाई, जब उसने गुनहगार इंसान को बचाने के लिए ये सब किया, तो फिर उसे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला नाम है, जिसके सामने हर एक घुटना झुकेगा, खा आसमानियों का, खा जमीनियों का उनका जो जमीन के नीचे पानियों में है। तो ज़कई के घर में जब यीशु आता है तो यीशु मसीह कहता है कि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आए हैं। इब्ने आदम के पास अख्तियार है। जब एक कफरनहूम के शहर के अंदर एक मफलूज को चारपाई पर 4 लोग उठाकर लाए, उस वक्त भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उसको शिफा देने से पहले एक लफ्ज कहा कि तेरे गुनाह माफ हुए। इस बात पर तेरे लोग बड़बड़ाने लगे, ये कौन है, ये कौन है गुनाह माफ कर सकता है, ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता। दरअसल वो जानते नहीं कि यही खालिक है, यही खुदा है। और कलाम में यूहन्ना के इंजील में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। वो इस कलाम को जानते नहीं है, वो इस कलाम को समझते नहीं है। ये कलमतुल्लाह है, ये खुदा का कलमा है जो उसकी जात का नक्श और परतोर है। इसके पास गुनाह माफ करने का अख्तियार है। ये निजात देना बनकर दुनिया में आया है और यूसुफ को यही पैगाम दिया गया, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो आपके लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु निजात देता है, यीशु निजात दहिंदा बनकर आया है। मरियम मुकस्सा का गीत भी यही कहता है, मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश है। जब हम इस बात को का मुताला करते हैं मेरे अजीजों, हमें ये बात समझ आ जाती है कि वाकई इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और यहाँ पर उसके पास अख्तियार भी है गुनाह माफ करने का, और उसने कहा ये अख्तियार मुझे मेरे बाप की तरफ से मुझे मिला है। उसने मफलूज से कहा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए, अपने गुनाहों से छुटकारा पा, अपने गुनाहों की माफी पा, क्योंकि बहुत दफा गुनाहों के सबब से भी हम बीमारियों में, मुसीबतों में गिर जाते हैं। और कलाम कहता है उसने कहा तेरे गुनाह माफ हुए। ना सिर्फ उसके पास गुनाह माफ करने का अख्तियार है, बल्कि उसके पास अदालत का भी अख्तियार है। वो जिसको चाहता है वो जिंदगी में दाखिल कर देता है। उसके पास अख्तियार है गुनाह माफ करके जिंदगी में, बल्कि हमेशा की जिंदगी के अंदर उनको दाखिल कर देता है। तो कलाम हमें बताता है कि वो खोए हुए को ढूंढता है। जैसे लूका की इंजील के 15वें बाब में हमें पहली तमसील में मिलता है, एक शख्स की भेड़ खो गई है। 100 भेड़ें उसके पास है, लेकिन एक भेड़ खो गई। वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जो खो गई है उसकी तलाश में निकल जाता है और उसको ढूंढता है। उसके लिए जीते मुसीबत भी उठाता है, और जब वो मिल जाती है तो उसको अपने कंधे पर उठा लेता है और खुश होता है, और अपने आस पड़ोस को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाता है, कहता है मैं सब खुशी करो क्योंकि मेरी भेड़ खो गई थी अब मिली है। और कलाम कहता है इसी तरह एक गुनहगार के जो तौबा करता है, जो मसीह की निजात को पाता है, निजात हासिल करता है, जो वापस बाप के घर में आता है, जो वापस फिरदौस में आता है, जो वापस बागेदर में वापस आता है, जिंदगी में वापस आता है, मौत से निकलकर, उसकी निस्बत आसमान पर बड़ी खुशी होती है। अभी जो धर्म खो गया उसके अंदर भी ये बात लिखी है 10वीं आयत में, मैं तुमसे सच कहता हूं इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है।
اور اس سے زیادہ مجھ سے بیٹے کی تمثیل میں جو بیٹا کھو گیا ہے وہاں پر بھی یہ بات لکھی ہے کہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ جب زکئی جو گناہ میں پڑا تھا، گم ہوا تھا، جب وہ ملا تو یسوع نے کہا اس گھر میں نجات آئی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ یسوع جب گھر میں آتا ہے نجات آتی ہے۔ کیا میرے گھر میں یسوع آج آتا ہے؟ کیا میں نے یسوع کے لیے اپنے دل کا دروازہ کھولا ہے، اپنے گھر کا دروازہ کھولا ہے، اپنی زندگی میں سے بیٹھ کر کہتا اور کہتی ہوں یسوع میرے دل کے دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہے، یسوع مجھے بلاتا ہے، یسوع مجھے پکار رہا ہے، میں تجھے ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، میں تیری تلاش سے آسمان سے زمین پر آ گیا ہوں، میں تیری تلاش میں تیرا خالق تیرے جیسا بن گیا ہوں، میں تجھے تلاش کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور ہم اپنے آپ کو آدم کی طرح پتوں میں چھپا رہے ہیں، ہم گناہ کی اوڑ لے کر پیچھے بھاگ رہے ہیں، دور جا رہے ہیں خداوند سے۔ آج خداوند بلاتا ہے، خداوند پکارتا ہے، خداوند پکار رہا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ خداوند پکار رہا ہے اپنا نام لے کر، تو کہاں ہے؟ مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ وہ زکئی کے ساتھ خوشی سے گیا کیونکہ جانتا ہے کہ زکئی کو نجات کی ضرورت ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی خوشی سے آئے گا کیونکہ اسے یاد ہے، اسے معلوم ہے آپ کو اس کی نجات کی ضرورت ہے، اور ابن آدم تو کھوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آ گیا ہے، اس لیے وہ آپ کو نجات دے گا۔ وہ آپ کو نجات دینے کے لیے تو دنیا میں آیا ہے، آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، آپ کو پاپوں میں سے، کیچڑ میں سے، دلدل میں سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ اور جب یسوع مسیح اس قدر مجھ سے پیار کرتا ہے، جب خدا کی محبت مجھ پر عجا ہوئی ہے، تو میرے عزیزوں آج مجھے اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اس نجات کو اپنی زندگی کے اندر لے لوں۔ وہ مجھے ڈھونڈتا ہے اور ہمارے لیے وہ نجات تیار کیے ہوئے ہے۔ یوحنا کے انجیل کے 30 باب کی 17ویں آیت میں اس کے بارے میں لکھا ہے، 3 باب کی 17ویں آیت میں، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ بیٹے کو اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا کہ وہ ایسا حکم جاری کرے، بلکہ اس لیے بھیجا کہ نجات، وہ گنہگاروں کو نجات دے، وہ ان کو نجات دینے کے لیے دنیا کے اندر آ گیا ہے۔ اور ہماری کتاب میں پطرس نے جب مرادی کی 4 باب کی 12ویں آیت میں، تو وہاں لکھا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام بخشا نہیں گیا ہے جس کے وسیلہ سے ہم نجات پائیں۔ ایک ہی نام ہمیں بخشا گیا ہے، ایک ہی نام جو سب ناموں میں اعلیٰ نام ہے ہمیں بخشا گیا ہے، اور وہ نام کون سا ہے؟ وہ یسوع نام ہے۔ وہ نجات دیتا ہے، وہ مقصد دیتا ہے۔ اس کی منادی شاگرد کر رہے ہیں، رسول کر رہے ہیں کہ کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں ہے، صرف ایک ہی نام ہے۔ اور اگر آپ پہلا تسلونیکیوں کا خط پڑھے تو وہاں پر اس کے 5ویں باب کی 9ویں آیت میں آپ کو واضح ملے گا۔ 5 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں غضب کے لیے نہیں بلکہ اس لیے مقرر کیا کہ ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات حاصل کریں۔ خدا نے ہمیں نجات حاصل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ جاتے ہیں، اس کا کلام پڑھ لیتے ہیں، سن رہے ہیں اور راست بازی کے عمل کو پورا کر رہے ہیں، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، تو میرے عزیزوں یہ نجات جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے، خدا نے آپ کے لیے ایسا ممکن کیا ہے کہ آپ اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لا کر نجات حاصل کریں، ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں۔ اور یسوع آپ کو نجات دیتا ہے، یسوع انسان کو نجات دیتا ہے۔ وہ رنگ اور نسل اور تعلیم اور عیش کو نہیں دیکھ رہا، وہ قوم اور قبیلے کو نہیں دیکھ رہا، وہ ملک کی بات نہیں کر رہا، وہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے نجات کے لیے آیا ہے۔ وہ کمزور اور زوراور کو بھی نجات دیتا ہے، وہ بادشاہ اور غدار کو بھی نجات دیتا ہے، وہ بڑے اور چھوٹے کو بھی نجات دیتا ہے، وہ مرد اور عورت کو بھی نجات دیتا ہے۔ اس کی حضوری میں کوئی یونانی نہیں ہے، کوئی یہودی نہیں ہے، کوئی غیر قوم نہیں ہے، کوئی بھی کسی طرح کا نہیں ہے۔ اس کی نظر میں سب ایک ہے اور وہ سب سے پیار کرتا اور وہ سب کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ یسوع نجات دیتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔
यीशु मसीह के वसीले से हम निजात हासिल करें। जब हम इब्रानियों का खत पढ़ते हैं उसका दूसरा बाब, तो वहां पर हमें और वाज़ेह मिलता है। दूसरे बाब की 3 आयत में, इब्रानियों के खत के 2 बाब की 3 आयत में लिखा है, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। क्या खूब है, बहुत बड़ी निजात है। अभी भी बेशुमार इंसान गुनाहों में, पापों में, बदी में पड़े हुए हैं। खुदावंद उनको निजात दे रहा है। और इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ, सुनने वालों से हमें सबूत को पहुंचा, और साथ ही खुदा भी अपनी मर्जी के मुआफिक निशानों, अजीब कामों और तरह तरह के मौजों और रूह कुदस की नेमतों के जरिए से इसकी गवाही देता रहा है। इस निजात की बाबत पहले से गवाही दी गई है। रूह कुदस गवाह है, नबी गवाह है, पैगंबर गवाह है, अंबिया के साहिब गवाह है कि वो तेरा देश, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, निजात उसके हाथ में है। वो निजात की बात करते हैं, उनके जरिए से पेशगोई की गई। इस बड़ी निजात की बाबत अब्राहम के साथ वादा किया गया, इस बड़ी निजात की बाबत नूह के साथ वादा किया गया, इस बड़ी निजात की बाबत दाऊद के साथ वादा किया गया। और दाऊद कहता है, मुझे फिर से अपनी निजात की शादमानी अता फरमा। जब वो अपने पाप से, गुनाह से धुलता है, वो कहता है, खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, मेरे बातिन में असल और मुस्लिम रूह डाल। वो इस निजात की बाबत शादमानी हासिल करता है, कहता है मेरे अंदर निजात की शादमानी डाल दे, मेरे मुंह में हमद का घी डाल दे। मेरे अजीज बहन भाइयों, गुनाह हमें मायूसी की तरफ ले जाता है, नाकामी की तरफ ले जाता है, गुनाह हमें खौफ की तरफ ले जाता है, गुनाह हमें शर्मिंदगी की तरफ ले जाता है। लेकिन खुदा का बेटा हमें शर्मिंदगी से निकालता है, हमारे गुनाह को ढांपता है। और ज़बूर में कहता है, मुबारक वो शख्स है जिसकी बदियों को खुदा हिसाब में लाता और ढांपता है। और धन जिससे बख्शे गए सब गुनाह, ते ढके गए सारे ओगन सदा। खुदा हमारी बदियों को आपको फरा देता, ढांपता, माफ करता, धो देता। यशायाह कहता है, तुम्हारे गुनाह किरमजी क्यों ना हो, वो बर्फ की माने सफेद कर देगा, धो देगा। वो हमारी बदी को धो देता है। तो कहता है, मुझे जूफे से साफ कर, मेरी बदी को धो डाल, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर दे, मुझे साफ और पाक कर दे खुदावंद, ताकि मैं तेरी हम कर सकूं। हम अभी गुनाह को छोड़कर यीशु मसीह पर, जो खुदा का बेटा इब्ने आदम है, जो तलाश कर रहा है, आपको निजात देता है। आप उसकी निजात को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिएगा। जब आप उसकी निजात को अपनी जिंदगी में ले लेंगे, आप शादमान होंगे, आपके अंदर रूह की खुशी आ जाएगी, आपके अंदर दिलेरी आ जाएगी, आपके अंदर से शर्मिंदगी दूर हो जाएगी। ये कलाम में लिखा है, जो इस पर ईमान लाता है वो हरगिज़ शर्मिंदा नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। शर्मिंदगी तब है जब गुनाह में है, जब निजात पागे हैं, शादमान हैं, फातेह हैं, और इब्लीस शर्मिंदा होता है। कलाम में लिखा है, इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं। जब इब्रानियों खात के 7वें बाब की 25 आयत को हम पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है, इसीलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं, वो उन्हें पूरी पूरी निजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। वो आधी निजात नहीं देता, वो पूरी पूरी निजात हमें दे रहा है। इब्ने आदम इसलिए आया, क्रिसमस इसलिए मना रहे हैं, इसलिए शादमान है कि वो पैदा हुआ जिसने निजात का इंतजाम किया है, पूरा पूरा इंतजाम मेरे और आपके लिए। वो हमें पूरी पूरी निजात देता है, क्योंकि उसके वसीले से निजात का पूरा इंतजाम हो चुका है। तो हमें उस निजात को अपनी जिंदगी के अंदर लेना है। इब्रानियों के खत के 5वें बाब के 9वीं आयत में पढ़ें, 8वीं आयत से बढ़ के लिखा है, और बावजूद बेटा होने के उससे दुख उठा कर फर्माबरदारी सीखी, और कामिल बनकर अपने सब फर्माबरदारों के लिए अबदी निजात का बायस हुआ। वो अपने ईमान लाने वालों के लिए, वो उनके लिए जो उसके ऊपर ईमान लाते हैं, उन फर्माबरदारों के लिए वो निजात का बायस बनता है। अबदी निजात, वो हमें अबदी निजात देता है, अबदी हयात देता है। इसलिए पौलुस कहता है, ये कबूलियत का वक्त है, ये निजात का दिन है, मसीह की पैदाइश निजात का दिन है। गडेरियों को फरिश्ता का यही पैगाम है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे मुनज्जी पैदा हुए, तुम्हारे लिए आज निजात का दिन है। हम सब के लिए भी जो अभी तक गुनाह में पड़े हैं, अभी तक मसीह पर ईमान नहीं लाए, कबूल नहीं किया है, ये निजात का दिन है, ये शादमानी का दिन है, ये माफी का दिन है।
ये मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का दिन है। इसलिए पतरस अपने खत के पहले बाब की 9वीं आयत में कहता है कि इस निजात की नबियों ने बड़ी तहकीक की। जो तुमको फजल से निजात मिली है, इस निजात के बारे में पहले से तहकीक होती रही है। इसके बारे में नबियों की मार्फत कलाम किया गया है, अंबिया के साहिब में लिखा गया है। लेकिन इससे खात में वो कहता है कि तुमको फजल से निजात मिली है। हमें फजल से निजात मिली है, ऐसी निजात जिसकी कोई कीमत नहीं है और हमें ये मुफ्त में दी गई है। हमें नेक कामों के सवाब से नहीं मिली, हमें हदिया नजरानों के सवाब से, दयाकियों के सवाब से, इबादत करने के सवाब से नहीं मिली। ये तो मुफ्त में खुदा ने हम पर बड़ा फजल करके हमें ये निजात बख्शी है और ये निजात अबदी निजात है। इसलिए यीशु ने आकर कहा, इब्ने आदम को इनको ढूंढने और निजात दे दिया। खुदा इस्लाम के वजह से हम सबों को बरकत दे और हम सबको अपनी निजात बख्शे। दुआ करें। सच कहेगा, अपनी जुबान कीजिएगा, शुक्रानी कीजिएगा इस निजात के लिए जो हमने हासिल किया। शुक्रानी कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस निजात की शाद मानने के लिए शुक्रानी कीजिएगा। वह शुक्रानी दुआ में रहनुमाई करेगी। कलाम हमने सुना है, इस कलाम के लिए शुक्रानी करेंगे। कदोस 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 मेहरबानी के खालिक और मालिक खुदा, हम दिल के था के रहने से शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप इलाही खुदावन के लिए। खुदावन कि जबकि खुदावन हमारे बचने का कोई वसीला ना था, तो खुदावन आपने आसमान पर हमारे ऊपर अपने करम की निगाह की और अपने बेटे को जमीन पर भेजा ताकि खुदावन वो हमारे गुनाहों को उठा ले जाए, हमारे बोझ उठा ले जाए और खुदावन हमारी निजात का सबब ठहरे। खुदावन हम इस बहुत बड़ी निजात के लिए दिल के था के रहने से शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद आज की जिंदगी बख्श कलाम के लिए भी शुक्र अदा करते हैं जो कि खुदावंद आपने अपने बंदा के वसीला से हम तक पहुंचाया कि हम इस निजात को समझें और खुदावंद हम खलासी पाए, रहाई पाए। खुदावंद हम इसको इग्नोर ना करें बल्कि खुदावंद हिकमत अकल दनाई से खुदावंद इस निजात के काम को समझे और इस निजात को अपनी जिंदगी में कबूल करे कि हमारे खुदावंद ने, हमारे बाप ने हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया, जबकि खुदावंद किसी कुर्बानी से हमारी निजात नामुमकिन थी। तो खुदावंद ने आपने इस काम को मुमकिन बनाया और इंसान के बचने का वसीला बनाया। खुदावंद हम सारे इस्लाही इंतजाम के लिए दिल के ठाकरे से शुक्र अदा करते हैं और मिन्नत करते हैं जो कलाम आज हमने सीखा है हमें हिकमत अकल दनाई दीजिए ताकि इस कलाम पर हम अमल करें, ना कि सुनने वाले बने। हमें खुदावन हमारे ज़हनों में ये कलाम नक्श हो, हमारे दिलों में जड़ पकड़े, 30 गुना 60 गुना फल लाए और खुदावन हमारी जिंदगी बच जाए जो हम इब्लीस के शिकंजे में है। हम इसको खुदावन इब्लीस से रहाई पाए और खुदावंद आपकी हुजूरी में आए, अपनी जिंदगियों से आपका जलाल जाहिर करें। अपने खादिम को बहुत ज्यादा बरकत देना और ज्यादा पाक रूह का गहरा मसा देना और ज्यादा कलाम के भेद मकाशफात अता करना ताकि आपका खादिम इसी तरह आपके लोगों को रूहानी ग़िज़ा देता रहे और आपके लोग खुदावंद तरक्की करते जाए, बढ़ते जाए। खुदावंद हमें रूहानी तौर पर बेदार कीजिए। इस नए साल में जब हम दाखिल होते हैं तो खुदावंद हम अपने आप को आपके कलाम के मुताबिक, आपके हुक्मों के मुताबिक, आपके कलाम के मुताबिक हम चले और अपनी जिंदगियों को संवारें और खुदावंद आपको खुश करें। ये सब कुछ हम आपके बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। गीत गाएंगे और इसी के दौरान हदिया से देंगे।